I will talk about some MCQs of polity. So let's begin. Consider the following statements regarding the budget session of Indian Parliament. Indian Parliament के budget session के regarding कुछ statements है, उसको consider करें. सबसे पहला statement क्या है? Budget is presented on the first day of the budget session. This is incorrect. Budget is typically presented on a specified day during the budget session, that not necessarily on the first day. ये जरूरी नहीं कि पहला दिन में ही budget जो है वो present किया जाए, वो कोई भी दिन में प्रेजेंट किया जा सकता है. तो ये एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. सेकंड स्टेटमेंट क्या था? जनरल डिस्कशन ऑन द बजट टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटेशन. सो दिस इज करेक्ट. जनरल डिस्कशन ऑन द बजट टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन होने के बाद जो जनरल डिस्कशन है ना बजट पे स्टार्ट हो जाता है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट? डिमांड फॉर ग्रांट इज फॉलोड बाय डिस्कशन एंड वोटिंग प्रोसेस. Third statement is also correct. The demand for grant is followed by discussion and voting process. Each minister's expenditure is discussed and voted upon. So next statement, which of the following statement about the money bill in the Indian Parliament is or are correct? So first statement, money bill can be introduced only in Lok Sabha. This is correct. Money bill can be introduced only in the Lok Sabha as per Article 110 of the Constitution of India. So second statement is what? Rajya Sabha cannot amend or reject the money bill. So this is absolutely correct. Rajya Sabha cannot amend or reject the money bill. It can only make recommendation over the which the Lok Sabha may accept or reject. So recommendation is subject to acceptance or rejection. So the third statement is that president cannot withhold assent to the money bill. President जो है वो withhold नहीं कर सकते. तो this is incorrect. President can either assent to the money bill or withhold assent. If the president withholds assent, the bill is returned to the parliament for reconsideration. यानी ये एक बात गलत है कि प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे देश की, वो विथहोल्ड नहीं कर सकती है मनी बिल को. वो विथहोल्ड कर सकते हैं. माने प्रेसिडेंट या तो अपना असेंट देंगे, या तो अपना साइन करेंगे मनी बिल के ऊपर, या तो वो विथहोल्ड करके रख देंगे. अगर प्रेसिडेंट विथहोल्ड करते हैं असेंट को, तो बिल वापस रिटर्न कर दिया जाएगा पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए. So let's discuss the next statement. Consider the following statement regarding the power of parliament in relation to union territories. यानी यूटीज के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट की शक्तियों के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं. The parliament can make laws on any subject in all the three lists. Union list, be it state list or concurrent list for the union territories. So this is correct. Parliament can make laws on any subject in all the three lists, be it union, state and concurrent for the union territories. Second statement, the parliament has the power to create or abolish legislative assembly for union territories. तो second statement भी correct है. पार्लियामेंट के पास शक्तियां हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बनाने और एबॉलिश करने की यूनियन टेरिटरीज के लिए, जैसा कि दिल्ली और पुडुचेरी में देखा गया है. तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. दिस इज इनकरेक्ट. सम यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा सच एज दिल्ली एंड पुडुचेरी. तो कुछ यूनियन टेरिटरीज जो है जिसका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट. सो अटॉर्नी जनरल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. तो अभी हम लोग कुछ पॉलिटिक्स के एमसीक्यूज देख रहे हैं. अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें इंस्टाग्राम को हैंडल को. सो लेट्स बिगिन with the next statement. Which of the following statement regarding the role of the Attorney General of India is or are correct? The first statement is the Attorney General has the right to audience in all courts in India. Second statement is that the Attorney General can take part in the proceeding of both houses of Parliament but cannot vote. Third statement is that the Attorney General must be a member of either house of Parliament. So आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से उत्तर दें. देखते हैं कौन आंसर दे पाता है. ओके, सो द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अटॉर्नी जनरल के पास अधिकार है, वो ऑडियंस के तौर पर हर एक कोर्ट में बैठ सकता है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इज दैट द अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट कैन नॉट वोट. हाँ, ये भी सही है. तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द अटॉर्नी जनरल मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. दिस इज इनकरेक्ट. अटॉर्नी जनरल ही ऐसे शख्स हैं जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में के मेंबर नहीं होते हुए भी वहाँ पर अटेंड करते हैं, प्रोसीडिंग में हिस्सा लेते हैं. ऑडियंस का राइट है, इनका बैठने का राइट है.
अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, सारे कोर्ट में ऑडियंस का अधिकार है. अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ both houses of parliament and their joint sitting and can speak or otherwise take part in committee. ठीक है. Hello everyone, welcome back to my new reel. Here I will discuss some other questions on polity. So are you all guys ready for the new reel? So let's begin. Consider the following statements about the powers and functions of the estimate committee in the Indian Parliament. यानी estimate committee जो है इंडियन पार्लियामेंट की, उसके powers and functions के कुछ statements हैं. तो चलिए इसको आंसर करते हैं. पहला है estimate committee examines how the budget estimates are prepared. तो ये सही बात है कि estimate committee examine करती है कैसे बजट बनते हैं. Estimate committee examines how the budget estimates are prepared. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द एस्टिमेट कमिटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. दिस इज इनकरेक्ट. एस्टिमेट कमिटी कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा, यानी सिर्फ लोकसभा के मेंबर से एस्टिमेट कमिटी बनती है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, एस्टिमेट कमिटी सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो ये बात सही है. एस्टिमेट कमिटी सजेस्ट करते हैं इकोनॉमीज पब्लिक एक्सपेंडिचर में और इंश्योर करता है कि मनी को वेल स्पेंड किया गया. So let's discuss another statement. Which of the following statement regarding the Council of States or Rajya Sabha in India is or are correct? तो पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और वो रिजोल्यूशन नहीं होता है, तो ये तो करेक्ट है. राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, इज नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर. सो ये भी करेक्ट है. 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. This is absolutely correct. Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. So let's discuss another statement. Consider the following statement about the finance bill in Indian Parliament. So first statement is what? Finance bill include all proposal of taxation. This is correct. Finance bill में सारे proposals होते हैं taxation के और दूसरे financial matters के. मिट्टी मिट्टी निंदेरा दा ख्वाब में तो क्या कसूर तू दिन दिया सुकून. फाइनेंस बिल मस्ट बी पास बाय पार्लियामेंट विद इन 75 days. दिस इज इनकरेक्ट. फाइनेंस बिल मस्ट बी पास बाय पार्लियामेंट विद इन 75 days फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन, नॉट जस्ट बाय पार्लियामेंट. फाइनेंस बिल को पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट. फाइनेंस बिल मस्ट बी पास बाय पार्लियामेंट विद इन 75 days फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन. डेट ऑफ इंट्रोडक्शन से 75 days में पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा. नॉट जस्ट बाय पार्लियामेंट, द राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन एंड इफ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउसेज. राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अगर लोकसभा एक्सेप्ट करे नहीं करे वो उनके ऊपर है. बिल को पास कर दिया जाएगा. बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउसेज. इफ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन, अगर लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करती है राज्यसभा की रिकमेंडेशन को, तो बिल को मान लिया जाएगा कि पास हो गया. फाइनेंस बिल कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा. तो हो ही नहीं सकता. फाइनेंस बिल कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा. राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन. राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया इज और आर करेक्ट. तो कौन सा स्टेटमेंट इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के बारे में सही है? मेरी मन जान तू मेरी बन जा, मिठी मिठी निंदरा ख्वाब है तो मेरा क्या कसूर तू दिन दिया सुकून. The president can proclaim national emergency only on the written advice of the cabinet. This is correct. President can proclaim emergency only on the written advice of the cabinet as per Article 352 of the Constitution of India. आर्टिकल 352 जो संविधान के अनुसार जब तक कि कैबिनेट का रिटर्न एडवाइस ना आ जाए तब तक प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकते. जबकि इंदिरा गांधी के टाइम पर बिना कैबिनेट के एडवाइस से इमरजेंसी 1975 में लागू कर दी गई थी. लेकिन 352 का ये प्रोविजन है कि कैबिनेट से हम लोग को एडवाइस लेना पड़ेगा लिखित में, उसके बाद ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है.
सेकेंड क्या है स्टेटमेंट, सच ए प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month. दिस इज करेक्ट. सच ए प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. यानी इशू जब हुआ है उसके डेट से 1 महीने के अंदर में दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट उसको अप्रूव करना पड़ेगा. सोनी सोनी तुझको बचाए मेरी हाँ, अब मेरी मन जा तू मेरी बन जा, मीठे मीठे राधा ख्वाब है तो. Next statement, during a national emergency the fundamental rights under article 19 are automatically suspended. This is incorrect. During a national emergency the fundamental right under article 19 are not automatically suspended. They are suspended by a separate presidential order. यानी आर्टिकल 19 वाला जो राइट है वो एक अलग सेपरेट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही सस्पेंड होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. This is incorrect. A bill pending in the Lok Sabha does not lapse on its prorogation, it lapses on its resolution. यानी बिल पेंडिंग अगर लोक सभा में है तो वो प्रोरोग होने से सेशन टर्मिनेट होता है, बिल टर्मिनेट नहीं होता है. ये डिसोल्यूशन पे टर्मिनेट होता है. बिल अगर कोई पेंडिंग है तो वो डिसोल्यूशन पे टर्मिनेट होगा. सेकेंड स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोक सभा lapses on its dissolution. This is incorrect. Bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha does not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. Only those bills which are pending in the Lok Sabha or those which have been passed by the Lok Sabha but are pending in the Rajya Sabha lapses. माने सिर्फ वो बिल जो कि लोक सभा में पेंडिंग हो आइदर या लोक सभा ने पास कर दिया वो बिल लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो सारे बिल लैप्स हो जाएंगे लोक सभा डिसॉल्व हो जाए तो. A bill passed by both houses and awaiting the president's assent does not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. This is correct. A bill passed by both houses and awaiting the president's assent does not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. मिठी मिठी राधा ख्वाब है तू, मेरा क्या कसूर, तू दिन दिए सुकून, ऐसी वो शराब है तू. Which of the following statement about the privileges of member of parliament is or are correct? Member of parliament enjoy freedom from arrest of civil cases during the session of parliament and 40 days before and after the session. This is absolutely correct. Okay. Second statement, no member of parliament shall be liable to any proceeding in any court of law in respect of anything said or any vote given by him in parliament or committee thereof. ठीक है, एकदम सही है. No member of parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof. Third statement, privileges of member of parliament are explicitly defined in the Indian Constitution. This is incorrect. Not explicitly defined. Privileges of member of parliament are not explicitly defined in the Indian Constitution. They are based on parliamentary convention and rule of procedure of the houses. मुझको बचाए तेरी हाँ, तो मेरी बन जा, मिट्टी मिट्टी राधा ख्वाब है तो. Consider the following states about the joint sitting of the Indian Parliament. A joint sitting of both houses of Parliament is presided over by the Speaker of the Lok Sabha. This is correct. A joint sitting of both houses of Parliament is presided over by the Speaker of the Lok Sabha. This is absolutely correct. The provision of joint sitting is applicable to Constitutional Amendment Bill. The provision of joint sitting is not applicable to Constitutional Amendment Bill, so this is incorrect. The joint sitting can be convened if bill is passed by one house and rejected by the other. This is correct. Joint sitting is convened if a bill is passed by one house and rejected by the other. Next statement, which of the following statement regarding the Speaker of Lok Sabha is or are correct? The Speaker can resign by writing to the Deputy Speaker. This is correct. The Speaker can resign by writing to the Deputy Speaker. Next statement क्या है? Speaker continues in office even after dissolution of the Lok Sabha until new Speaker is elected. This is absolutely correct.
Speaker does not vote in the first instance but exercise a casting vote in case of tie. Right, correct है, ठीक है. Welcome to all of you to my new reel, continuing the previous series of reels on the polity MCQs. So let's begin. Consider the following statements about the Committee on Public Undertaking, COPU, in Indian Parliament. COPU examines the report and accounts of the public undertaking. This is correct. Committee on Public Undertaking यानी COPU एग्जामाइन करता है रिपोर्ट्स और अकाउंट्स पब्लिक अंडरटेकिंग का, तो ये सही बात है. सेकंड क्या है कि द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इज ए स्टैंडिंग कमिटी. स्टैंडिंग कमिटी है क्या, ये भी सही है. कमिटी जो पब्लिक अंडरटेकिंग का इंडीड एक स्टैंडिंग कमिटी है. तीसरा नंबर क्या है, जो चेयरमैन जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो ये गलत है. चेयरमैन जो है ना कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का, वो उसके मेंबर से इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकसभा सेक्रेटेरिएट इज और आर करेक्ट. लोकसभा सेक्रेटेरिएट के बारे में जो स्टेटमेंट्स है वो कौन सा करेक्ट है. सबसे पहला स्टेटमेंट है लोकसभा सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, तो ये करेक्ट है. लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है वो सेक्रेटरी जनरल हेड करता है उसको, ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेक्रेटरी जनरल इनकरेक्ट है. सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा स्पीकर से अपॉइंट करता है. सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल है, लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल है वो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है. लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है सेक्रेटरी जनरल को. तीसरा स्टेटमेंट क्या है, लोकसभा सेक्रेटरीट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी. लोकसभा जो सेक्रेटरीट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो ये करेक्ट है. लोकसभा सेक्रेटरीट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी एंड लोकसभा एज अ होल. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया इज और आर करेक्ट. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये गलत है. ऐसा कोई करेक्ट डेफिनेशन नहीं देता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाद. सेकंड स्टेटमेंट, द होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इट इज डिटरमाइंड बाय लॉ. ये लॉ से डिटरमाइंड होता है. नंबर टू, द होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन from being a member of parliament. This is correct. The holding of an office of profit can disqualify a person from being an MP as per the Parliament Prevention of Disqualification Act 1959. Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 के तहत अगर MP ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है MP के तौर पर. President can has the authority to decide what positions are to be considered as office of profit. हाँ ठीक है, ये सही है. President has the authority to decide what position are to be considered as office of profit based on the recommendation of the Election Commission of India. Election Commission of India के recommendation पर decide कर सकती है, President decide कर सकता है, authority है उसको decide करने का कि कौन कौन से positions जो हैं वो office of profit की कैटेगरी में आ रहे हैं. Next question, consider the following statement about the rule of procedure and conduct of business in the Indian Parliament. Rule of procedure और conduct of business का statement क्या है? These rules are framed by President of India. गलत है. The rules of procedure and conduct of business in the Indian Parliament are not framed by the President. President नहीं बनाता rules of procedure और conduct of business. They are framed by each house of the Parliament. हर एक house of the Parliament अलग अलग बनाता है अपना rules of procedure और conduct of business. Number 2, Speaker of the Lok Sabha and Chairman of the Rajya Sabha has authority to interpret these rules. Speaker जो है लोक सभा का और Chairman जो है राज्य सभा का, उसका authority है इंटरप्रेट करने का इन लॉज को, तो ये बात सही है. The Speaker of the Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha have the authority to interpret these laws. This is absolutely correct. These rules are subject to amendment by a simple majority in the House. This is correct. These rules can be amended by simple majority of the House. So next question, which of the following statement about the leader of opposition in Indian Parliament is or are correct? The leader of opposition is recognized only in Lok Sabha. This is correct. Leader of opposition is recognized only in the Lok Sabha. There is no provision for such a position in the Rajya Sabha. राज्य सभा में कोई opposition का कोई position नहीं होता है.
सिर्फ लोकसभा में होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। नंबर 2, लीडर ऑफ अपोजिशन इज स्टेचुटरी पोजीशन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज इनकरेक्ट। लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट अ स्टेचुटरी पोजीशन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज अ कन्वेंशन बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन को रखना एक कन्वेंशन, एक प्रैक्टिस है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के हिसाब से इवॉल्व हुआ है। इट इज नॉट अ स्टेचुटरी पोजीशन, इट्स नॉट recognized by statute, any statute or by Constitution of India. It's a convention based on parliamentary practice. Third क्या है, the leader of opposition is entitled to a salary and allowances equivalent to a cabinet minister. This is correct. लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी लीडर है ना, उसको अधिकार है, उसको मिलना है सैलरी और अलाउंसेस उतना मिलना है जितना कैबिनेट मिनिस्टर को मिल रहा है। मिनिस्ट्री जो पावर में है, कैबिनेट जितना उसको पैसा मिल रहा है, जितना सैलरी मिल रहा है, उतना ही ओपोजिशन को सैलरी और पैसा मिलता है। दिस इज डिटरमाइंड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हाउएवर दिस इज डिटरमाइंड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। Consider the following statements about the disruption of parliamentary proceeding in India. Disruption of parliamentary proceeding in India. The first statement is Speaker of the Lok Sabha, the Chairman of the Rajya Sabha can suspend members disrupting the proceeding. This is correct. Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha can indeed do this. डीपीएसपी जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के कुछ क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए, इस बैकग्राउंड के लिए आपको कैसा लग रहा है जरूर रेट करें इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट। तो डीपीएसपी आर जस्टिफाइबल इन नेचर एंड आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। तो ये ए स्टेटमेंट है, ये कैसा है, ये इनकरेक्ट है। डीपीएसपी आर नॉट जस्टिफाइबल इन नेचर, मीनिंग दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो क्या नहीं है, वो कोर्ट में आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो दे आर एसेंशियली गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो वाइल मेकिंग लॉस। ये गाइडलाइंस है, जैसे कभी भी कानून बनाते हैं गवर्नमेंट तो उसको फॉलो करता है, गवर्नमेंट फॉलो करते हैं उनको ताकि कानून बनाने में, ठीक है। डीपीएसपी नेक्स्ट, DPSP aim to establish a welfare state by promoting the economic and social well-being of the people. So ये करेक्ट है। DPSP जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका एम ये है कि एक वेलफेयर राज्य स्टेट बनाया जाए, वेलफेयर देश बनाया जाए। कैसे प्रमोट करके इकोनॉमिक जो वेलबींग है लोगों की, सोशल सामाजिक वेलबींग को प्रमोट करके, देन इनको इंक्लूड प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी एंड प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। थर्ड, द डीपीएसपी आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग आर्टिकल 36 to 51। तो ये बात क्या है, सही है ना। तो इंडीड एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग फ्रॉम आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन डीपीएसपी आर एप्लीकेबल ओनली टू यूनियन गवर्नमेंट एंड नॉट टू स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज इनकरेक्ट। प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन डीपीएसपी, जो भी प्रिंसिपल्स बताया गया डीपीएसपी में, वो दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एप्लीकेबल के प्रति एप्लीकेबल हैं। दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी देश को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, देश को एडमिनिस्टर करने के लिए जो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है कि वो दिमाग में रखे जाएंगे जब भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, लॉज बनाए जाएंगे, दोनों तरह के, दोनों लेवल्स में, गवर्नमेंट के, दोनों सरकार राज्य के भी लेवल में और इसके केंद्र के भी लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, डीपीएसपी आर जस्टिफाइबल इन नेचर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो इनकरेक्ट बता ही दिया ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो, उसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए एंड बी, ए बी सी, बी सी ए सी डी, ए बी और सी करेक्ट है, ए बी और सी। प्रमोशन इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी सिक्योर करना, ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और सी का मतलब, सी में क्या दिया है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
टू चिल्ड्रेन बिलो 6 years ऑफ एज, 6 साल से छोटे बच्चों के एजुकेशन और चाइल्डहुड केयर के प्रोविजंस जो है वो भी डीपीएसपी में बताए गए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया एनकम्पासेस वाइड रेंज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, बहुत बड़े रेंज के सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करता है डीपीएसपी। हाउएवर द प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना और फ्री कानूनी सलाह एक पार्ट है मौलिक अधिकार का, जो संविधान ने डायरेक्ट किया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, Which of the following statement regarding directive principle of state policy is incorrect? See, DPSP are applicable only to union government, not state government. ये incorrect है। Which of the following is not a directive principle of state policy? इसका आंसर ए है, यानी promotion of equal pay for equal work is not a directive principle. Promotion of equal pay for equal work is not listed as specific directive principle of state policy in the Indian Constitution. However, it is a principle enshrined in the fundamental rights and other provisions of the Constitution. Promotion of equal pay for equal work is a directive principle of state policy or not. Article 39 of the DPSP deals with equal pay for equal work for men and women, was in original list of directive principle of state policy and not added through amendment. ये तो है, DPSP है, गलत आंसर है इसमें लिखा हुआ। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन आर्टिकल 39 है और एक DPSP है।